This So, conference will as now be recorded. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच लैंग्वेज इज कॉल्ड एज फ्रांसे। आज लास्ट क्लास में हमने किया क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? Pleju de la semaine. Pleju de la semaine. Very good. In our last session, we did les jours de la semaine, the days of the week. That is lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Right? So today Yes, we are sir. going to do the months of the year. That is les mois de l'année. Les Les mois mois de l'année. प्रोनाउंसिएशन मैंने हिंदी में आपके लिए इजी हो ताकि इसलिए लिखी है। नहीं लिखा कल आपने बोर्ड पे लिखे ना, अब ज्यादा क्लियर हो पा रहा है। ले मुआ दलाने, द मंथ्स ऑफ द ईयर। ले मुआ दलाने। यहाँ पे ना दो आर्टिकल्स हैं, एक ये और एक ये। These are the articles which is meant for the the के लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल्स ले और ये वाला ले। ले मुआ दलाने, तो मंथ ऑफ द ईयर। सो हमें पता है कि मंथ ऑफ द ईयर कितने हैं हमारे पास? 12 है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे पास ये 12 मंथ ऑफ द ईयर होते हैं। फ्रेंच में भी हमारे पास 12 ही होते हैं सेम, बट इनकी जो स्पेलिंग है और जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या Yes, है, sir. अब हम इनको एक एक करके जानते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कुछ कुछ पे ना हमारे एसेंट्स लगे हैं। जैसे फरवरी पे हमारा ई के ऊपर एसेंट है। ठीक है, अक्टूबर में हमारा एसेंट है, दिसंबर में हमारा एसेंट लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा जब लिखते वक्त ये एसेंट लगाने आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा है जनवरी। जनवरी इज कॉल्ड एज जनविए। जनविए, जनवरी इज कॉल्ड एज जनविए। फरवरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, री, आर, आर here is rolled. Okay, R here Yes, is sir. rolled. So January, February, March, April, May, Sir, June, दोबारा बताना। July. Yeah, I am repeating once again. ध्यान से सुनिएगा। जनवरी, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो आप। जनवरी, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, July, July, Juillet, out, out, September, September, October, October, November, November, December। December. अब देखिए स्पेलिंग अगर आप देखेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये स्पेलिंग सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। वो क्या? हाँ, अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं वो आती है BER, बट फ्रेंच में जब हम लिखते हैं वो आती है BRE। तो जब हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं अंग्रेजी में, दैट वुड बी सितंबर, है ना, बर, सितंबर। और जब हम इसको करते हैं तो दैट इज सितंबर। ठीक है, ई हमारा पीछे आ रहा है इसमें, राइट। तो वी आर रिपीटिंग Yes, sir. वंस अगेन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आउट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। Yes, sir. तो ये है हमारे मंथ ऑफ द ईयर, ले मुआ द लाने। ओके, सो
सो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एक 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 मिनट Are you right? लिखने दो। हाँ Yeah, लिख रहा है, रह रहा है, please write them. दिख नहीं Please रहा, write them. थोड़ा जूम कर दो। हाँ बस बस। Everyone, please write them. January, February, March, April, May, June, June, out, September, October, November, December. Please tell me once you're done. मेरा तो हो गया सर, औरों का पता नहीं, मैंने तो लिख लिया और स्क्रीनशॉट भी ली। Okay. So let me start pronunciating it one by one. Yes sir. Okay. So we will start Yes with sir. you, Satyam. Sure sir. Okay. Months of the year. Les mois de l'année. January, Janvier, February, Février, March, Mars, April, Avril, May, May, June, Juillet, July, Juillet, August, out, September, September, October, October, November, November, December, December. Good. Very good. Excellent. Next. Prabhat, are you there? Next, Ashok. Is not. Ashok. Hello, sir. Yeah. Good morning. Good afternoon. Yeah. Good Please evening, start sir. pronunciating them. Month Please of the start year. pronunciating them. Yes, sir. Month of the year. Les mois de l'année. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, July, 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 August, out, September, 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 October, October, November, November, December, December. Very good. Next, Karan. Yeah, Karan, please start. Next, Krishan. Krishan, are you there, Krishan? Sachin. I'm there, sir. Yeah, please start. Months of the year. De mois de l'année. January, Janvier, February, February, March, March, April, April, May, May, June, July, 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 sorry, July, July, August, out, September, September, October, October, November, November, December, December. Good. Well attempted. So, do we have Karan and Krishan with us? Would they like to try?
ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि ये तो थे हमारे मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब फ्रेंच में ईयर्स, डिकेड एंड सेंचुरी को क्या कहते हैं? ईयर क्या होता है? हमारा एक साल है ना, 12 महीने। डिकेड क्या होता है? डिकेड क्या होता है? हाफ ईयर। एंड व्हाट इज सेंचुरी? Decade is 10 years and century is 100 years. Very good. So 12 months, decade, 10 years. repeat it again, Sorry? century, 100 years. So इनको फ्रेंच में क्या कहते हैं? ईयर को जैसे हमने ऊपर लिखा लाने, ठीक है, तो ईयर को लान या लाने, लान या लाने, जैसे मैंने यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखे लान या लाने, ठीक है। ईयर को लान या लाने कहते हैं। डिकेड को हम कहते हैं देसुनी, देसुनी, ल देसुनी, द डिकेड, ल देसुनी, दे सुनी। और सेंचुरी को कहते हैं ल सीक, ल सीक। इज इट क्लियर? Yes, sir. ईयर, लान या लाने, लान या लाने। मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ, वेट। ठीक है। लान या लाने, that would be La what? Desuni. अच्छा, Desuni. century. Yeah, de suni. Okay, and Yes, century is La Sichuk. हल्की सी ह की साउंड आएगी, सी, See? सी। See. सो Okay. ये है हमारा पूरा मंथ, ईयर एंड डिकेड का, ठीक है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लान, देसुनी एंड सीक। ओके, सो अब मैं Yes. चाहूंगा कि आप लोग इसको रिपीट करें, बट विदाउट प्रोनाउंसिएशन और विदाउट हिंदी। वन बाय वन हम इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे, बट हम प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ेंगे इसकी, हम रिकॉग्नाइज करके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, राइट? सो स्टार्ट करें प्रोनाउंसिएशन, स्टार्ट करें। आप लोग देखिएगा मत, प्लीज डोंट चीट। Yes, sir. या स्टार्ट। January, January, नेक्स्ट। February, February, March, April, वेरी गुड, May, वेरी गुड, June, वेरी गुड, July, out, September, October, November, December. व्हाट इज ईयर? What is Lane या Lane, या and this is व्हाट इज डिकेड? means decade means I don't remember sir. Decade means डिकेड, दसुनी, century means है is Decade, Dasuni, हाँ decade, yes sir, दसुनी। Dasuni और sir. व्हाट इज सेंचुरी? And Sihak, Sihak, a hag, Nicharan Sihak.
सेब, 10 सेब, C. सेब, C. सेब, Very good. सेब. Good. Well attempted. Okay. Next कौन try करेगा? Yes, sir. Yeah, please. Les mois de l'année, Very janvier, good. février, mars, avril, mai, juillet, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Year is called l'an or l'année. Decade is called la décennie, and century is called la siècle. Excellent. Très bien. Très bien. So this is a month of the year in French. Les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, l'année, le décennie, le siècle. So this is all about the months in French. Now, I would like to request you one thing. Please write a note. Please write a note. Please write a note. Open your book and take your pen out and write uh, to express in certain month to express in certain months such as in May, to express in certain month such as in May. In May, use en, use en before the month, as in before the month, as in May, with dates, with dates. The ordinal number are not used. The ordinal number are not used except for the first of the month. Except for the first of the month. Also note that days of the weeks and month of the years are all masculine, are all masculine in nature and not capitalized in French, and not capitalized in French. जैसे आपने मेरे को देखा होगा, जो जितने भी मैंने फ्रेंच के यहाँ लेटर लिखे हैं उनके इनिशियल स्मॉल है ना, ये स्मॉल है। ये एक नोट करने वाली बात है कि फ्रेंच के अंदर डेज ऑफ द मंथ एंड डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर हमेशा मैस्कुलिन होते हैं और दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड, राइट। और जो ऊपर वाला मैंने नोट लिखवाया है इसको भी नोट कर लो। जब हम नंबर्स करेंगे तो मैं आपको ये नोट समझाऊंगा कि इस नोट का एग्जैक्टली मतलब क्या था। Shall I repeat the note again or you are done? No, it's okay. We are done. Okay. For सर sake, प्लीज रिपीट करना सर। yeah, I am सर repeating. प्लीज रिपीट करना। Yeah, I am repeating. To express in a certain month, to express in a certain month, such as in May, to express in certain month, such as in May, use en. Use en before the month, before the month, as in a May, as in a May, en, May, with dates, with dates. The ordinal number are not used. The ordinal number are not used.
comma except for the first month, except for the first month. Also note that the days of the week and the month of the year are all masculine. The days of the week and month of the year are all masculine and not capitalized in French. And not capitalized in French. Right? So ये था हमारा एक टॉपिक, that is month of the year. That is month of the year. I'm repeating it once again. January, February, March, April, May, June, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Decembre. L'année, दसवीं, दसवीं. So ये था हमारा month of the year. Okay. एक छोटा सा नोट हमने इसका लिखा. Now moving on. एक बार कोई मुझे ये बिना देखे पूरा सुना सकता है? Can anyone repeat it without Yes, looking sir. at the note? Yes, sir. Please, I'm glad. Yeah, please. Les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, December. Year is called l'an or l'année. Decade is called la décennie, and century is called la siècle. Very good. Anyone else जो मुझे सुना सके ये बिना देखे? Sir, I am. Yeah, please. Months of the year, sir. Des mois de l'année. January, January, February, March, April, May, June, July, Juillet, August, Août, September, October, November, December. Decade, देश हुए सर, ये नहीं पता. डिकेड और सेंचुरी. दसवीं, La décennie. दस सुनिए. दसीक, दसी. 5 बार रिपीट करो. Okay. Decade, दसवीं. Decade, दसवीं. Repeat it 5 times. Decade, दसवीं. सुनिए. Repeat it 5 times. दस सुनिए. डिकेड दसवीं. डिकेड दसवीं. and century. Okay, sir. Decade दसवीं. Century. C check है. Okay, good. So अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये जो दो हमने चीज की, ले मुआ दलाने, ले जू दलसमैन, तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है? ठीक है, तो ताकि साथ साथ हमारी प्रैक्टिस होती रहे इसकी, इसलिए मैं आपको बीच में से ये चीज करवा रहा हूँ. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले तो आप एक ये नोट डाल लो. द
accent E, this one E, gives a sound in French. The accent E gives a sound in French. Okay? तो ये नोट डालो. अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. इल्या, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी इल्या. इल्या का मतलब होता है देयर इज और देयर आर. ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन है, राइट? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, देयर इज और देयर आर. और कॉम विया द, का मतलब होता है हाउ मेनी और हाउ मच. हाउ मेनी और हाउ मच. तो ये दो हमारी क्वेश्चन की फॉर्मेशन है. कैल हम बाद में करेंगे क्योंकि कैल को समझने के लिए हमें थोड़े बॉब्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए. और कैल एक अलग से फ्रेंच के अंदर टर्म आती है, तो कैल को हम अलग से करेंगे, जो विच और वो वाली जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होती है. अभी के लिए हम सब इतना जानेंगे कि इल्या इज, देयर इज और देयर आर, कॉम वियर द, हाउ मेनी. समझ में आया? कैन यू रिपीट इट? इल्या, there is, Ilya, there is or there are, and come bear the, how many and how much. Come bear the, how many, how much. Ilya, there is. I am writing a question. Ilya, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. I am writing a question. come here. So, ये क्वेश्चन मैंने लिखा. क्या कोई ट्राई करेगा इसको पढ़ने का? Can you try to read out this question? Ilya combia da de jour dans une semaine. Yeah, you are somehow correct. Very good. ये है Ilya com via the Jew Dan Jun the man. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? वक्ता आपसे पूछना क्या चाह रहा है? सर एक उसमें दिन कितने इल्या होते क्या हैं होता सर? है? इल्या क्या होता है? देयर आर. इल्या क्या होता है? देयर आर, है ना? कॉम्बिया द क्या होता है? How many? How much? How Or much? how much? हाउ How मैनी. much there? देजूर समेन क्या होता है? देजूर समेन कितने दिन Week. होते हैं? वीक. अच्छा, कितने वीक होते हैं? कितने वीक होते कितने हैं? दिन होते हैं वीक में? या देयर आर हाउ मैनी डेज इन अ वीक. हाउ मैनी डेज इन अ In a वीक, week. राइट? तो ये क्वेश्चन उसने पूछा हमसे, तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे? There are Ilya 7 वेरी गुड, वेरी गुड. दान. राइट. कि कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हम कैसे शुरू करते हैं
सब कुछ क्वेश्चन से उठाते हैं। देयर आर 7 days in a week as follow। ऐसे ही लिखते हैं ना, हम हमें बचपन में ऐसे ही सिखाते थे, ठीक है। Yes, sir. तो फ्रेंच में हम ऐसे ही लिखेंगे। 7 को फ्रेंच में सैप्ट कहा जाता है। हमको काउंटिंग करेंगे तब हम सीखेंगे काउंटिंग, ठीक है। 7 को सैप्ट कहा जाता है फ्रेंच में, ठीक है। तो आपको पता है इल्या सैप्ट, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इल्या सैप्ट। अब आप इसमें ले भी लगा सकते हो या एज इट इज क्वेश्चन में भी उठा सकते हो। आप ये यू का यू क्वेश्चन में भी उठा सकते हो, या फिर आप इसमें आर्टिकल ले भी लगा सकते हो। तो जब हम आर्टिकल्स करेंगे तो आपका ये चीज डाउट क्लियर हो जाएगा कि ले यून ल कहाँ लगाना होता है हमें, ठीक है। ले जून दला मैन, या आप इसका सिंपल ये भी कर सकते हो, इसको छोड़ो, आप इसका सिंपल ये भी लिख सकते हो। हम लेजूर दला समेन सोन, ये जो सोन है, सोन, ठीक है, इसका मतलब होता है आर। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, द डेज of the weeks are of a week yes are of the week are, फिर नीचे आप लिखेंगे लैंदी मारदी मकरदी जदी वैंददी समदी दिमोंश, राइट। तो इस तरीके Yes. से आपको क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करने हैं। सपोज अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है ये कि इल्या कॉम्बिया द, सब मिटाओ नहीं, बस स्क्रीनशॉट ले लो। कॉम्बिया द जो दला, मैंने स्क्रीनशॉट लिया सत्यम भाई, मैं भेज दूंगा आपको। स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में भेज दियो, ठीक है। ओके ब्रो। ओके, थैंक यू। ओके। यहाँ पे एक और ट्रिक है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन का मतलब कुछ और है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब पता है क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है इल्या कॉम्बिया द जू दान यून समैन। यून का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि हमारा फर्स्ट डेज ऑफ द वीक कौन सा होता है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो आपको अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ इसको। अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्रोवीज लेजूर दलसमैन, अगर आपका क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, ये वर्ड का क्या मतलब है? एक्रीवे, एक्रीवे का मतलब होता है राइट डाउन, ठीक है। एक्रीवे, एक्रीवे इन फ्रेंच, इन इंग्लिश कॉल्ड एज राइट डाउन। अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्रीवे लेजूर दलसमैन, तो व्हाट यू विल डू, आंसर में लेजूर दलसमैन सोन लैंदी मारदी मकरदी जदी वैंडरदी समदी दिमोंश, राइट, राइट।
Now, I am asking a question to you. Écrivez, les jours de la semaine. Satyam. Yes, sir. Écrivez les jours de la semaine. Écrivez les jours de la Les jours semaine. de la Okay. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. क्योंकि Yeah, आपने मुझसे पूछा था कि write down the days of the week. yeah. Now I am asking a question to Jadev. I am asking a question to Jadev. Jadev, écrivez les mots de l'année. Écrivez les mois de l'année. Krishan, हेलो yeah, सर, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, बट लेमू दिलामे का मतलब सर मंथ ऑफ द ईयर yeah. और écrivez का मतलब? राइट डाउन. So I am asking écrivez les mois de l'année. हाँ, तो सर इसका हो गया सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आउट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, Septembre. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. Décembre. Yeah. So इस तरीके से हमारा होता है डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर, और इस तरीके से इनका क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. नाउ अब हमारे पास एक और नई चीज आ रही है. ठीक है. आई गेस इतना बहुत है आज के लिए, है ना. हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, जो आज हमने क्वेश्चन किया. है मेरा. हाँ यस हाँ. ले सर, मुआ जैसे दिलाने. कि एक मिनट, सॉरी हो. कोई कुछ बोल रहा नहीं. है. मेरा एक क्वेश्चन है सर. यस. अगर जैसे कि मान लो मुझे बोलना है कि 5th of November 2020, तो उस फॉर्म में फ्रेंच में कैसे बोलेंगे हम? माना कि ये भी हमने हाँ. डेट्स नहीं करी हैं, लेकिन फिर भी एक assumption एक बता सकते हैं आप मुझे? आप पूछ रहे हैं कि आपको डेट बतानी है, राइट? फ्रेंच में मंथ के साथ. या डेट और मंथ और ईयर, इन तीन चीजों को इकट्ठा जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स पता होने चाहिए. ठीक है. और नंबर्स के बाद फिर आपको मंथ और ये ईयर्स कैसे लिखते हैं फ्रेंच में, ये पता होना चाहिए. तो लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो यही करेंगे, नंबर्स करेंगे हम अपने. ठीक है. 100 तक नंबर्स हम करेंगे. उसके बाद आपको ये जो डेट है, डेट मेंशन करनी मैं सिखाऊंगा, राइट? अगर अभी मैंने आपको बीच में बताई तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और जो आज करवाया वो भी भूल जाओगे, बिकॉज इट इज अ लिटिल ट्रिक देयर. समझ रहे हैं? तो इसके लिए आपको नंबर्स को जानना जरूरी है सबसे पहले, कि फ्रेंच में नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है ना. जैसे 0, 4, 7, 6. नहीं रहने देते हैं सर. तो इस तरीके से हमें नंबर्स पता होंगे. ठीक है. सेंचुरी को क्या कहते हैं, मिलियंस को क्या कहते हैं, ट्रिलियंस को क्या कहते हैं, उसके बाद ही हम इसको कवर अप कर पाएंगे. और अगर अभी मैंने बीच में से आपको ब्रेक करके ये बताया तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ओके. जैसे कि ले 12 जुए, द 2nd जून, इसका मतलब होता है 2nd जून डे,
दूज, जुए। अब दूज यहाँ पे वर्ड जो है दैट इज फॉर, दूज का मतलब होता है नंबर 2, ठीक है। अब फ्रेंच में मैं आपको बताऊं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो है ये चीजें अलग होती हैं, समझे? ओके, ये चीजें कैसे अलग अलग होती मतलब? हैं, मतलब कि इनकी प्रोनाउंसिएशन और इनका जो बोलने का वो होता है लहजा, ये अलग होता है, बाकियों से? ठीक है ना? हाँ, जैसे हमारे होते हैं ना, एक तो कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ये तो सुना यस होगा सर, ना? यस तो सर, यस सर। ये जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, जिनके पीछे हम टीएच लगा देते हैं, ठीक है? तो ये जैसे यस सर, अंग्रेजी यस में फर्स्ट होते इसलिए। हैं, ऐसे फ्रेंच में ये अलग होते हैं, ठीक है? लाइक अगर आपको कहीं पे फर्स्ट वर्ड डिनोट करना है, तो फ्रेंच में उसको हम प्रोमी कहते हैं और प्रोमियर कहते हैं। लाइक अगर मैस्कुलिन के लिए आप यूज कर रहे हैं या फेमिनिन के लिए यूज कर रहे हैं, फिर वो देखा जाएगा, ठीक है? तो अगर मैस्कुलिन के लिए यूज कर रहे हैं तो प्रोमिए, और अगर फेमिनिन यूज कर रहे हैं तो प्रोमियर। तो दैट इज फॉर फर्स्ट। तो ये हम बाद में करेंगे, भी आपके सर के ऊपर से जाएगा, नहीं तो पागल हो जाओगे। ओके, नो इश्यूज। तो आज के लिए जो आज हमने किया, पहले हम उसे रिपीट करते हैं, ठीक है? हम दोनों चीजें अभी आप मुझे एक एक करके सुनाओगे, ठीक है? ओके, आपको मुझे दोनों चीजें सुनानी है फिलहाल। अ, सबसे पहले मुझे स्टार्ट कीजिए, ले मुआ दलाने। ओके। ले मुआ दलाने, जनविए, हम्म फेवरिए, हम्म मार्च, हम्म अप्रैल, हम्म हम्म मई, जुए, जुए, हम्म आउट, हम्म हम्म सितंबर, हम्म अक्टूबर, हम्म नवंबर, दिसंबर। गुड। देन डेज ऑफ द वीक। ओके, लेंदी, मर्दी, हम्म हम्म मकदी, जदी, हम्म वेंद्र, हम्म समदी, दिमांश। excellent, excellent. Okay, what is um, year called? Okay, it's lan or lane. What is week called? Week. Okay, Yeah, week is a man. It's a man, I guess. very good, excellent. Trivia, trivia. Bravo. What is century called? Century is called Lasik. Excellent. थोड़ा सा शायद गलत है, but it's something like What is that. Thursday? What is Thursday? Thursday, Hmm. rapid fire. Thursday is Jadi. Okay. Okay, great, great, great going. Excellent, trivia. Moving on, next participant, Krishan. Krishan, are you there? Okay, Jaidev. Yes, sir. Yeah. Tell me the days of the week. Yes, sir. Leju dala समय, Hmm? लेंदी, मार्दी, Hmm? मकदी, गदी, Hmm? Hmm? मैकदी, दी, Hmm? Hmm? लिमोन। Oh, great, great. And what is month of the year? Month of the year. Yes, sir. तो एक बार Hmm. ये फ्रेंच के अंदर कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लाइक मंथ ऑफ द ईयर? मैं थोड़ा सा लेट था उसमें। Okay. Le Mua मुआ Dalane. दलाने, Okay. ले मुआ दलाने, Hmm. जनवरी, Hmm. फरवरी, Hmm. मार्च, Hmm. अप्रैल, Hmm. मई, Hmm. जून, Hmm. जुलाई, Hmm. आउट, Hmm. सितंबर,
Yes. October. Sorry, ये तो इंग्लिश में हो गया. आपने ये अंग्रेजी में बोला, इसको दोबारा. अक्टूबर. October. Yes, October. October. 5 times. October. Repeat it 5 times. October. 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 Repeat it 5 times. October. 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 Merci beaucoup. Yeah. Next. November. 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 Repeat it November. 5 times. November. 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 Very good. Next. December. 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 Repeat it 5 times. December. 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 Very good. अब दोबारा से एक बार रिपीट कर दो. ले मुआ दलाने. ले मुआ दलाने. January. February. March. January. January. हाँ. February. March. April. May. June. July. August. September. October. भूल जाता हूँ. November. November. December. Very good. Très bien, très bien. Well attempted. Good. Now, Kishan is not participating with us. तो ये था आज का हमारा सेशन. होप आप लोग अब क्लियर होंगे डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर को लेके. ठीक है. नेक्स्ट सेशन हमारा होगा नेक्स्ट फ्राइडे. सो टिल दैट आप भी यहाँ तो merci beaucoup. आप भी यहाँ तो merci beaucoup. आप भी यहाँ तो stands for see you soon. Oreva. What? आप भी यहाँ तो Oreva. say Oeva means goodbye. Oeva means goodbye. And आप भी यहाँ तो please repeat it. आप भी यहाँ तो is see you soon. आप भी यहाँ तो see you soon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. And what does that mean? Merci beaucoup is thank you very much. Merci beaucoup means thank you very much. Mercy, thank you. Yeah, mercy. Mercy means thank you. Merci beaucoup, thank you very much. So अगर आपको कोई कहता है merci beaucoup, thank you कोई आपको कहता है तो आप बदले में क्या बोलते हो? Mention not या फिर welcome, है ना? Yes sir. So that is de rien. Mention not is de rien. De rien. De rien. Yes, de rien. Okay. So आप भी यहाँ तो आप welcome. Welcome is be a venue. Sorry? Be a venue. Be a venue. Yeah, be a venue. Welcome. Be a venue. Okay. Okay. So Sure. this is for all today's session. आप भी यहाँ तो au revoir, merci beaucoup, and bisous bisous. Bisous, bisous. Yeah. Okay. चलिए bye bye. Take care. मिलते हैं Okay. next Bye. session में. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup.